सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु के रण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य लला। प्रभु के रण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य लला। महामिलन की मंगल वेला, महामिलन की मंगल वेला। प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ। मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला। ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर हो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ। भाव के भरे भाव से पल पल प्रभु गुणगान करो। ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो, प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्ना करो, पास में आकर वो रत्ना करो। रतन अनोखे लुटा रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ। प्रभु शरण आओ।
શાંતિ. આજનો આપણો ટોપિક છે મુરલી. મુરલી આ થોડું પ્રેઝન્ટેશન છે એ જોતા જઈએ, પછી આપણે મુરલી વાંચીશું. तो गीता में वर्णित युद्ध हिंसक या अहिंसक. हिंसक युद्ध આજે આપણે જોઈએ છે તે આ યુદ્ધ સેમ મહાભારતનું યુદ્ધ. શિવ શક્તિ પાંડવ સેના જે હવે આપણે તૈયાર થઈ ગયા, એ સેનામાં ભરતી થઈ ગયા ને. હવે આપણે થયા કે ના થયા? થયા ને. રથ, જે ગીતામાં જે રથ બતાવે છે તે રથ 5 horses, 5 sense organs, આપણી 5 કર્મેન્દ્રિય, જે આપણી મેઇન કર્મેન્દ્રિય છે જે કર્મ કરે છે. અને ભગવાનનો રથ, કયો રથ હતો ભગવાનનો? બ્રહ્મા બાબા. રાઈટ. અર્જુન, બ્રહ્મા બાબા. ब्रह्मा तन में निराकार शिव परमात्मा का प्रवेश. એવી રીતના આપણે જે રથ પર બેસીને અર્જુનની સાથે કૃષ્ણ ભગવાન જે ગીતાનું જ્ઞાન એમના મુખેથી આપે છે, એમાં કોઈ તફાવત લાગે છે કે નહીં એ જોવાનું. આ કમ્પેરિઝન છે. આપણે જે ગીતા જ્ઞાન જે સમજ્યા છે, જે જાણ્યું છે, અને આ 7 દિવસમાં 10 દિવસમાં જે સમજ્યા, એનું કમ્પેરિઝન છે કે આ એ જ જ્ઞાન છે, એનું કમ્પેરિઝન છે. મુરલી, જે ભગવાને જે મહાવાક્ય કીધા, જેને આપણે મુરલી કહીએ છીએ, જેમાં 1936થી 1969 જ્યાં લગીને સાકાર બ્રહ્મા બાબા જીવતા હતા અને ભગવાન આવતા હતા, એમના સાકાર રૂપમાં જ્યારે ભગવાન આવીને જે મહાવાક્ય બોલ્યા હતા એને કહેવાય છે સાકાર મુરલી. અને એમના અવ્યક્ત થયા પછી 2015 લગીને, અત્યારે લખ્યું છે આમાં ટીલ ધીસ ડેટ, તો 2015 પછી એ મહાવાક્ય જે એમના તનમાં આવતા હતા એ બંધ થઈ ગયા. જે 1969 થી 2015 જે મહાવાક્ય અવ્યક્ત સ્વરૂપે બાપ દાદા આવીને ફૂલઝાડ દાદીના તનમાં જે મહાવાક્ય બોલતા હતા એને કહેવાય છે અવ્યક્ત મુરલી. સાકાર મુરલી એટલે સુપ્રીમ સોલ શિવ બાબા સાકાર બ્રહ્માના તનમાં આવીને જે મહાવાક્ય બોલ્યા તે. शिव परमात्मा का ब्रह्मा तन में अवतरण और उनके द्वारा उच्चार किए गए महावाक्य. આવી રીતના બ્રહ્મા બાબાની આજુબાજુ બધા બેસી જતા હતા જ્યારે ભગવાન આવતા હતા એમના તનમાં, ને આવી રીતના એ મુરલી સંભળાવતા હતા. અવ્યક્ત મુરલી. અવ્યક્ત બાપ દાદા, બાપ અને દાદા. બાપ કોણ? શિવ બાબા. અને દાદા કોણ? બ્રહ્મા બાબા. આ બંને સોલ કમ્બાઈન થઈને ગુલજાર દાદીના તનમાં 1969થી આવીને જે અવ્યક્ત ગીતાનું જ્ઞાન, જે મહાવાક્ય બોલ્યા, જેને અવ્યક્ત મુરલી કહેવામાં આવે છે, જે આ ગુલજાર દાદીના તનમાં આવતા હતા. આ જે બાબા મિલન વખતના ફોટા છે. અવ્યક્ત મુરલી જે ચાલતી હતી ત્યારે બાબા મિલન વખતે બધા સાથે બેસતા હતા અને જ અવ્યક્ત મુરલી સંભળાવતા હતા બાબા આવીને. હું આજે તમને એનું ચિત્ર પણ બતાવીશ ને એના વિડીયોઝ પણ બતાવીશ. मुरली का महत्व, मुरली आत्मा का नरिशमेंट है. જેવી રીતના આપણને ખોરાકની જરૂર છે, ન્યુટ્રિશનની જરૂર છે, એમ આ મુરલી એ આત્માનો ભોજન છે, નરિશમેન્ટ છે. मुरली डायरेक्ट परमात्मा का महावाक्य है. मुरली योग का एकमात्र आधार है. मुरली माध्यम है 84 जन्मों का बहुत अच्छा बनाने का. मुरली का महत्व में मुरली हमारे अंतर मन के सभी प्रश्नों का जवाब है.
मुरली वेस्ट और नेगेटिव संकल्प से बचाती है। मुरली आप कर्म करने से, पाप कर्म करने से बचाती है। मुरली नए कार्मिक अकाउंट क्रिएट करने से बचाती है। मुरली के चिंतन से बुद्धि दिव्य बनती जाती है। मुरली पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने का आधार है। मुरली आत्मा और परमात्मा का कन्वर्सेशन है, वार्तालाप। આપણે વાતો કરીએ ને એનો જે જવાબ બાબા તરફથી મળે છે ને એની વાત છે। मुरली हमारे 84 जन्मों के कहानी है, 84 जन्मों की कहानी है। मुरली रिश्तों में मिठास लाने का साधन है। मुरली आत्मा की उन्नति का एकमात्र आधार है। मुरली तीनों लोकों और तीनों कालों का सत्य ज्ञान है। मुरली पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा, सेवा की स्टडी है। मुरली असुरी संस्कार और आसुरी प्रवृत्ति पर जीत पाने का आधार है। मुरली लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। लक्ष्य શું છે આપણું? लक्ष्मी नारायण भगवान। मुरली ईश्वर द्वारा पढ़ाए जाने वाले पढ़ाई है। मुरली हमारे वर्तमान समय में आंतरिक खुशी बनाए रखती है। मुरली आत्मा का भोजन है। मुरली विपरीत परिस्थितियों को सहज हैंडल करने का उपाय है। मुरली ही सत्य गीता ज्ञान है। मुरली ही परमात्मा की पालना है। त्रिमूर्ति। A new journey began here today. આજથી આપણે બધા કેવા થઈ ગયા? બ્રાહ્મણ। આપણી આગળ શું લાગી ગઈ ડિગ્રી? BK, બ્રહ્મકુમાર, બ્રહ્મકુમારી। બાબાની સેનાના સૈનિક। What to do next? Meditate for few seconds. શરૂઆત કરીએ આપણે। હવે આ મુરલી જેમના તનમાં આવે છે અને આપણે કેવી રીતના, તો એના અમુક વિડીયોઝ છે, હું આખું નહીં બતાવું, થોડું બતાવીશ કે આ ગુલજાર દાદી, સૌથી પહેલાં ગુલજાર દાદીને જોઈએ કે જે અવ્યક્ત બાપ દાદાનું રથ છે। बाप दादा आपके तन में आते हैं तो आपको उस समय क्या फीलिंग होती है? शुरू से ही जब बाबा का आना शुरू हुआ तो बाबा, साकार बाबा के संस्कार होने के बाद हम तो वैसे ही भोग लगाने बैठे, क्योंकि हमारे ब्राह्मण परिवार का ये नियम है कि जो भी शरीर छोड़ता है उनको 13 दिन उसका भोग लगता है। पहले दिन ज़रूर लगता है, जब शरीर का संस्कार हो जाता है तो सभी तैयार होकर पहले भोग लगाते हैं। रोज़ भी क्लास में कुछ न कुछ 13 दिन उसके प्रति भोग रखते हैं, थोड़ा सा ही, जो उस आत्मा को स्वीकार कराते हैं। तो बाबा के संस्कार के बाद हम भोग लगाने के लिए बैठी थी, लेकिन बाबा को आना है ये मुझे भी पता नहीं था, और बाबा का पाठ चढ़ना है ये भी पता नहीं था। जैसे क्वेश्चन सभी के थे, क्योंकि अचानक बाबा का हुआ था तो सबके मन में ये क्वेश्चन थे
तो बाबा अव्यक्त हो गया तो सेंटर कैसे चलेंगे, मुरली कैसे मिलेंगी और डायरेक्शन कौन देगा, ये सब के क्वेश्चन थे, हमारे भी क्वेश्चन थे। लेकिन जब भोग लगाने बैठे थे तो अचानक उसी दिन बाबा आया था। ये जो पाठ हमारा शुरू हुआ उसी दिन बाबा अचानक आया था और उसी दिन ही मैं समझती हूँ सारे क्वेश्चन का उत्तर दिया था। तो सभी के मन में जो दुविधाएं थी ना, क्या होगा कैसे होगा, तो वो बाबा ने सभी उत्तर देने थे, क्योंकि बच्चों के क्वेश्चन चलेंगे तो थे तो ऐसे ही ना, क्या क्यों, इसीलिए बाबा ने फौरन ही स्टॉप करने के लिए आए थे। तो पहले दिन से हमें ये अनुभव है कि जितना समय बाबा हमारे बॉडी में, शरीर में आते हैं, यूज़ करते हैं हमारी बॉडी, उतना समय मेरे को कुछ पता नहीं होता है। आत्मा तो मेरी यहाँ ही होती है शरीर में, क्योंकि आत्मा अगर 4-4 घंटा निकल जाए तो प्रवेश होना मुश्किल है। इसीलिए होती तो आत्मा हमारी इसी शरीर में ही है, लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस, मैं गुलजार हूँ, ये कॉन्शियसनेस जो है वो मर्ज होती। जैसे रेडियो होता है ना, रेडियो में या टीवी में आप जो भी आपको लाइन, क्या कहते हैं इसको, टीवी में क्या करते हैं, चैनल जो भी आप खोलो उसका आपको आवाज़ आएगा। बाकी चल तो सभी चैनल रहे हैं ना उस समय, ऐसे नहीं है बंद होते हैं, लेकिन स्विच हमारा बंद होता है, इसीलिए चैनल चलते हुए जिसका हम स्विच खोलते हैं वही हमको सुनाई देता है, देखने में आता है। इसी रीति से हमारे को बाबा जो सभा में होता है, मिलते हैं, आते हैं, जो भी होता है, इसका कॉन्शियसनेस हमारा बंद होता है। लेकिन मेरी क्या स्टेज होती है इतना समय, मैं अपने को बिल्कुल ऐसी मीठी साइलेंस में अनुभव करती हूँ, बहुत अच्छा अनुभव होता है उतना समय, एकदम जैसे डेड साइलेंस नहीं, स्वीट साइलेंस, एकदम जैसे बाबा के लव में लीन हूँ या बीज रूप हो, वो भी कुछ नहीं होता है, लेकिन एकदम स्वीट साइलेंस के स्टेट में जैसे मैं मग्न रहती हूँ। इसीलिए मुझे लौट के आने में थकावट नहीं लगती, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी स्टेज से लौटती हूँ। तो स्वीट साइलेंस के स्टेज से लौटने के कारण मेरे को थकावट भी नहीं होती, और जो यहाँ चलता है वो कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। लेकिन क्वेश्चन दूसरा कोई करते हैं तो आपको ये नहीं आता, तो मैं भी सुनती तो अच्छा है। लेकिन मैं ये फ़ायदा समझती हूँ कि जो स्वीट साइलेंस का बाबा हमको अनुभव कराता है वो हमारे लिए इतना ही अच्छा है जितना मैं सुनूं। और सेवा होती है मेरे शरीर द्वारा, उसकी खुशी और दुआएं जो है उसमें मैं संतुष्ट हूँ, मुझे क्वेश्चन नहीं उठता है। मैं समझती हूँ आप समझ गए होंगे अनुभव दादी का, कैसे बाबा आते हैं। दादी, किसी ने पूछा है कि बाप दादा आपके तन में आते हैं तो आपको उस समय क्या फीलिंग होती है? शुरू से ही जब बाबा का आना शुरू हुआ तो बाबा, साकार बाबा के संस्कार होने के बाद કેમ આજ દાદીના તનમાં, તો એનો જવાબ એવો હતો, બાબાએ જાતે આવીને આપ્યો હતો કે આ દાદી 9 જન્મોથી બ્રહ્મચર્ય પાળતા હતા, 9 જન્મોથી. હવે એ દાદીને પોતાને પણ નહોતું ખબર,
પણ બાબાએ એમના તનમાં જ્યારે આવ્યા હતા ને એમને આ ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવ્યું કે કેમ આ ગુલજાર દાદીના તનમાં જ આટલા બધા ત્યારે ત્યાં આગળ હતા, તો એમાંથી કેમ આમને, તો આ 9 જન્મથી બ્રહ્મચર્ય પાળતા હતા. એટલે જે શક્તિ બે આત્માઓને, પવિત્ર આત્માઓને ધારણ કરવાની શક્તિ, એક બાબા શિવ બાબા અને એક બીજા બ્રહ્મા બાબા, એ બંનેને શક્તિને ધારણ કરવાની પોતાના બોડીમાં, એટલું તમારું શરીર પવિત્ર હોવું જોઈએ, એટલી શક્તિ હોવી જોઈએ. તો આ દાદી 9 જન્મોથી બ્રહ્મચર્ય પાળતા હતા. એટલે હવે આ એમનો ઓરિજિનલ અવાજ સાંભળ્યો જ્યારે બાબા મિલન હોય છે અને બાબા આવે છે, એની ખાલી ક્લિપ બતાવું છું તમને, આખું નથી બતાવતી. આને મુરલી કહેવાય એવું મારે તમને સમજાવું, જેને અવ્યક્ત મુરલી કહેવાય. बाप दादा ने हम सबको वरदानों से भरपूर किया और 15 दिन के लिए कार्य भी दिया. और सभी को मदद भी. આ અવાજ બાબાનો અવાજ છે, ગુલજાર દાદીનો અવાજ નથી. कोई को सोच करना नहीं पड़ा कैसे करे, कर रही है. एक तो का सहयोग बहुत था. उसे बाबा ने प्रोग्राम दिया था ना, ये कितना बारी गई से बहुत बारी गई. एक दिन कोई मदद से सभी प्रोग्राम अच्छे, बहुत अच्छे हुए सब जगह. आवाज तो फैल गई. इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स बनाए, इतने लंबे चौड़े. संदेश तो मिला, अभी आगे बढ़े. सभा में VIP बहुत आते थे और तब तक बैठे रहते थे जब तक हम वरदान और शक्तियाँ बरसात बहुत बड़ी है ना, उसके बरसात का इफेक्ट आ गया. उसको किसी कीड़े ने काट लिया तो उससे उसको सारा बदन जकड़ गया, वायरल हो गया और खास उसको याद नहीं. हम भी वीडियो फोन करते हैं. उसने कहा कि नेक्स्ट टर्म में मैं आऊँगी बाबा से मिलने के लिए. दादी, किसी ने पूछा है कि बाप दादा आपके तन में आते हैं. હવે આ સાકાર બાબા, જે બાબા પોતે મુરલી સંભળાવ છે, જ્યારે પોતે સાકારમાં હતા ત્યારે આ એમનો ઓરિજિનલ અવાજ. किसके लिए किसकी महिमा है? तुम बच्चों की. क्यों? ये चांद, सितारे, ये जमीन और आसमान, इन सब के ऊपर इस समय में झगड़ा है. जमीन के ऊपर भी झगड़ा है, तो जो ये आसमान है उसके ऊपर भी झगड़ा है ना बच्चे? हाँ भाई, हमारी स्पेस आसमान में कोई का भी एरोप्लेन का है, हमारे समुद्र के अंदर में कोई भी न आवे. तो अभी ये गीत ये बनवाया गया हुआ है कि बात समझाते हैं बच्चों को. अब ये बात સાત દિવસના કોર્સમાં કમ્પલસરી નથી હોતું, પણ મને થયું કે આ વસ્તુ કરવાથી આપણને જો હજી વધારે ક્લિયરિટી આવતી હોય, સમજ પડે, એટલે આ બતાવ્યું ને. આઈ હોપ કે બધાને ગમ્યું હોય.
તો આજે આપણે સાંભળીશું સાકાર મુરલી, જે બાબા પોતે હતા સાકારમાં ને જે સોમવારથી શનિવાર સુધી સાકાર મુરલી હોય અને રવિવારે અવ્યક્ત મુરલી ચાલે, જે બાપ દાદાના મહાવાક્ય કહેવાય તે. તો આજે આપણે આજના દિવસની સાકાર મુરલીનું પઠન કરું છું. પૂરું કદાચ ના થાય તો મેઇન પોઈન્ટ સમજાવું છું. આવી રીતના અઢી પાનાની મુરલી આવતી હોય છે ફિક્સ. આ તમને મોબાઈલ પર પણ આવશે, તમને યુટ્યુબ પર પણ મળશે, સાંભળવા પણ મળશે, વાંચવા પણ મળશે, બધું જ અવેલેબલ હોય છે. તમને હું સેન્ટર્સમાં તમારા નંબર આપીશ તો તમારા ગ્રુપમાં પણ એ આવશે. આ સાંભળવા જવાનું, આ બાબાની શ્રીમંતમાં શ્રીમંત એવું કહે છે કે રોજ સવારે 7 વાગે જે સેન્ટર ઉપર જઈને આ મુરલી સાંભળવાની હોય છે. એ બાબાની શ્રીમંત છે. એ ટાઈમે બાબા પોતે જાતે આ મુરલી સંભળાવવા આવે છે એવું બાબાએ કીધું છે. કે દરેક સેન્ટર ઉપર 7 વાગે, હવેનો જ આ બધી ફેસિલિટીઝમાં આપણે એમાં સાંભળીએ છીએ મોબાઈલ પર કે ટીવી પર, કે લોકડાઉન હતું તો ઓનલાઈન ક્લાસીસ ચાલતા હતા મુરલીના, પણ ત્યાં બેસીને સાંભળવું એટલે ભગવાનના ક્લાસમાં બેસીને ભગવાન સામે બેસીને સાંભળવા બરાબર હોય છે. તો એ આપણે બાબાના વાક્યો, મહાવાક્યો આજના સાંભળીએ. મીઠે બચ્ચે, બાબા ઓલવેઝ ગમે તેવા હોય બચ્ચાને શું કહે? મીઠા બચ્ચા. મુરલી સાંભળતા ધ્યાન રાખવાનું કે આ બાબાએ મુરલી મારી માટે જ કીધી છે. તો મીઠા બચ્ચા કોને કીધું? મને કીધું આજે. मीठे बच्चे अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसीलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो. તમારી માટે આજનું જ વાક્ય છે ને કે તમે આ કોર્સ પૂરો કર્યો અને આજથી નવી જીવનની શરૂઆત કરશો. તો આજની મુરલીનો સાર છે, मीठे बच्चे जब अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसीलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो. प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाहवाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? કયા બચ્ચોને સૌથી વધારે પ્યાર કરે છે ને કોની વાહવાહ કરે છે? उत्तर છે, बाबा गरीब बच्चों की वाहवाह करते हैं. वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, लालच नहीं. गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं. बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती. लॉजिकल माइंड, यहाँ क्यों, क्या ये शब्द कहाँ यूज हो रहा है? बाबा ने क्या बोला? गरीब बच्चे मतलब कैसे बच्चे? लॉजिकल माइंड वाले नहीं, जो एकदम मीठे बच्चे जिसको ज़्यादा सोचते नहीं है, उनको समझाने में तकलीफ नहीं होती है. लॉजिकल माइंड वाले को समझाने में तकलीफ होती है. तो बाबा इसी संदर्भ में बोल रहे हैं कि बाबा गरीब बच्चों की वाहवाह करते हैं. वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, लालच नहीं. गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं. बाबा अनपढ़ बच्चों को देख खुश होते हैं. लॉजिकल माइंड नहीं એટલે अनपढ़, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत ही नहीं करनी है. कुछ पढ़ने की मेहनत ही, पढ़ा जो है ही नहीं उसको, तो डायरेक्ट जो बोल रहे हैं बाबा वही सत्य है वो मान के चाल लेते. उसमें क्या, क्यों ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है. ओम शांति. अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो. आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव, अक्षर है तो वही ना. बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो. आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है. एक शरीर लिया, पाठ बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है. आत्मा तो अविनाशी है. तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई को इन बातों का पता नहीं है.
आत्मा कहते हैं, आत्मा तो अविनाशी है, तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी ही मिलता है। अच्छा, वांचियो आपने। अब बाप कहते हैं, कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करो। धंधे धोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको नेस्टा में बैठना है। नेस्टा अक्षर भी राग है, वास्तव में है ही याद। कहाँ भी बैठो बाप को याद करो। તમે લખે છે એ પ્રમાણે સમજ પડવાની વસ્તુ કે ધંધા દોરીમાં બેસીને આપણે એને યાદ નથી કરી શકવાના. નેસ્ટા એટલે એક જગ્યાએ બેસીને તમે એને યાદ નથી કરી શકવાના. તો બાબા એવું કહે છે કે કહાં भी बैठो बाप को याद करो. माया के तूफान तो बहुत आएंगे. कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या याद करवा बैसीशु तो कशु पर याद आवशे. तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि ना आए. यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी. यही तो युद्ध है. आज युद्ध है. जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे. पहले तो आत्मा निर्बंधन है. जब जन्म लेती है तो माँ बाप की बुद्धि जाती है. फिर स्त्री को एडप्ट करते हैं. जो चीज़ सामने नहीं थी वो सामने आ जाती है. फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी. अब तुमको सबको यह भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है. इसीलिए ही बाप की महिमा है. तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो. वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले जाते हैं. संबंध तो वहाँ भी होगा ना. ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रलय हो जाती है. अभी आ बात को नहीं करे छे सतयुग में. तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो. जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वह जरूर उच्च कुल में जन्म लेंगे. तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्म के लिए. पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगा. स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो. शांतिधाम फिर सुखधाम. शांतिधाम એટલે परमधाम અને सुखधाम એટલે सतयुग. इस छीछी दुनिया से छूट जाएंगे. इसका नाम ही है नर्क. सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग. यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है. धनवान जो है वह समझते हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है. स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में. यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है. जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वो कोई धर्मराजपुरी में सजाए थोड़ी भोगेंगे. આપણે કર્માતીત અવસ્થાએ પહોંચીશું તો આપણે ધર્મરાજની સજા नहीं भोगवी पड़े. स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं. वहाँ गर्भ भी महल रहता है. આપણે જે બચ્ચાઓ હોય છે, જે ગર્ભ હોય છે, આપણે ગર્ભ ધારણ કરીએ છીએ ને બચ્ચાઓ જે 9 મહિના રહે છે એને બાબા જેલ કહે છે કે તમારા પાછલા કર્મો ભોગવવા માટેનું જેલ કહે છે. જે બચ્ચાઓને એમાં સજા ભોગવતા હોય છે તો બાબા એવું કહે છે કે સ્વર્ગમાં એ ગર્ભ પણ મહેલ જેવો હશે. ત્યાં તમને તકલીફ નહીં હોય કારણ કે તમે કર્માતીત થઈને ગયા છો. સજા ભોગવવાની કશી બાકી જ નથી રહી. कोई दुख की बात ही नहीं. यहाँ तो गर्भ जेल है जो सजाए खाते रहते हैं. तुम कितनी बार स्वर्गवासी बनते हो यह याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे. एक ही बात लाखों रुपये की है. यह भूल जाने से देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है. यही मेहनत है. मेहनत बिगर उच्च पद नहीं पा सकते. बाबा को कहते हैं बाबा हम अनपढ़ हैं, कुछ नहीं जानते. बाबा तो खुश होते हैं
क्योंकि यहाँ तो पड़ा हुआ सब भूलना है, यहाँ तो पड़ा हुआ सब भूलना है. એટલે આટલા વખતથી જે આપણે બધું 63 જન્મોમાં જે સમજ્યા અને જાણ્યું એ ભૂલવાનું છે. બાબાનું જ્ઞાન મળે ત્યારે દેહ અભિમાન છોડવાનું છે ને, તો એ દેહ અભિમાન છોડીશું તો આપણને આ નવું જ્ઞાન આત્મજ્ઞાન ઉતરશે. जानते हो ना, यह सब खलास होने का है. जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है. वाह गरीबी इस समय की, आराम से रोटी टुकड़ा खाना है, लालच नहीं. ધંધાદોરી એટલી જ કરવાની કે જેમાં રોટી મળે, અને બાકીનો સમય ક્યાં કાઢવાનો? બાબાને યાદ કરવામાં. બાબા એવું સમજાવવા માંગે છે કે લાલચ ઓછી કરી દો. જે અત્યારે ભણી ગણીને આપણે જે બિઝનેસ કરીએ છીએ, બાબા એવું કહે છે કે એમાં લાલચ ઓછી કરી દો અને સમય વધારે બાબાને યાદ કરવામાં કાઢો. चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी नहीं. ऐसे नहीं तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी. वो तो कुछ भी जानते नहीं. हाँ, बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं, उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है. यहाँ तो साफ कर देते हैं कि है ही नहीं. लाचारी थोड़ी देते हैं. जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भर के देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत देगा. चीनी आदि आ सकती है परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है. याद न रहने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता. यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा. वह बहुत कम है समय, हाँ, वह बहुत कम है. माया याद को उड़ा देती है. रुस्तम को और ही अच्छी रीत पकड़ती है. अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है. ગ્રહચારી એટલે अच्छे बच्चों, જે યોગ બહુ જ પુરુષાર્થી બચ્ચાઓ છે એને પણ માયા એવી સરસ રીતે પકડતી હોય છે. એ ટાઈમે જો તમારું જ્ઞાન તમે જો ભૂલી જાઓ તો તમને માયા પકડી લે છે. એટલે ભલભલા જે 30-40 વર્ષથી જ્ઞાનમાં છે એવા લોકોને પણ જ્યારે માયા પકડી શકે છે, તો આપણે તો હજી શરૂઆતમાં છે. પણ એવું બાબાનું કહેવું છે કે ફર્સ્ટ ક્લાસ બચ્ચો પર બી ગ્રહચારી બેઠતી है. અને જે પુરુષાર્થી બચ્ચા હોય ને એને માયા બહુ જોરદાર પકડે. કે તમે જેટલો પુરુષાર્થ વધારશો એટલી માયાના તકલીફો, જોરદાર તૂફાનો પણ આવશે જ. એને બી મજા ત્યાં જ આવે ને. કમજોર આત્માઓને પકડવામાં તો કંઈ મજા છે જ નહીં. नहीं, ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं. यह बड़ी मंजिल है. अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े. बाप कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा, ज्ञान से याद अच्छी. ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता नहीं होती. ऐसे बहुत है जो फालतू ध्यान में जाते हैं. ध्यान में बैठा એવું કરીને બેસી ગયા, પણ એમાં જ્ઞાન કશું નહીં, પલાઠી વાળીને બેસી ગયા અને મગજ ભટકતું હોય, મન જગ્યા પર ના હોય અને કે હું 2 કલાક ધ્યાનમાં बैठो, पर એનો કોઈ मतलब નથી. ऐसे बहुत है जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना. ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता है, रहता है. बाप खबरदार करते रहते हैं ध्यान कोई काम का नहीं है. बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है. ज्ञान तो सबको मिलता रहता है. ज्ञान देने वाला शिव बाबा है. मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिला था ना. આપણે જે મમ્માની સ્ટોરી સાંભળી હતી તો એમને બી જ્ઞાન ક્યાંથી મળ્યું હતું? આ મુરલી જ વાંચતી હતી બાબા પાસેથી. उनको भी कहेंगे मन मना भव, मन मना भव.
આ ગીતાનો મહામંત્ર છે. આ મંત્ર આપણે બી યાદ કરી લેવાનું છે. મન મના ભવ. એક બાબામાં મન પૂરવીને રાખવાનું. મન મના ભવ. बाप को याद करो, देवी गुण धारण करो. अपने को देखना है हम देवी गुण धारण करते हैं, यहाँ ही देवी गुण धारण करने हैं. कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते, घंटे के बाद क्रोध का भूत आया. खत्म. फिर स्मृति आती है यह तो हमने भूल की, फिर सुधर जाते हैं. घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा पास बहुत है. अभी देखो बड़े मीठे बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों को पर तो कुर्बान जाओ. घंटे बाद फिर कोई ना कोई बात में बिगड़ पड़ते हैं. क्रोध आया, सारी कमाई खत्म हो गई. जो कमाई की वो खा गए. अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा हो जाता है. अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा. सारा मदार याद पर ही है. ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले. परंतु मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ जाने, अपने को आत्मा समझे, उस रीति छोटे बच्चे थोड़े ही याद कर सकेंगे. मनुष्य को मरने समय कहा जाता है भगवान को याद करो, परंतु याद कर न सके, क्योंकि यथार्थ सब कहते आए हैं कि रचना और रचना को हम नहीं जानते. वो तो फिर भी सतोगुणी थे. आज के तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सकते हैं? આપણે બધા મરણ પથારીએ પડીએ ત્યારે ભગવાનને યાદ કરવા જઈએ તો ભગવાન કેવી રીતના યાદ આવે? એની માટેનો પુરુષાર્થ પહેલેથી કર્યું હોય, પ્રેક્ટિસ કરી હોય તો યાદ આવે ને. रोज हमने बाबा को याद किया है तो वो याद उस टाइम पे आएगा ना. वो तो फिर भी सतोगुणी थे. आज के तमो प्रधान बाप कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी ही नहीं जानते, तो फिर प्रजा कैसे जानेगी? कोई भी नहीं जानते. अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो. तुम्हारे में भी कोई है जो यथार्थ रीत जानते हैं. कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं. बाप कहते हैं कहाँ भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो. बड़ी भारी कमाई है, तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो. ऐसे बाप को अंतर्मुख हो याद करना चाहिए ना. परंतु माया भुलाकर तूफान में ला देती है. इसमें अंतर्मुख हो विचार सागर मंथन करना है. विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी अभी की है. यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग. यह भी वंडर है. तुम बच्चों ने देखा है, एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी है और हाफ पार्टनर व बच्चा आदिकल युगी है. एक ही घर में जो ज्ञान में चलता है वो कहता है हम सतयुगी है, जे नहीं चालतुं है कहे छे कि हमें कलयुगी है. घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं. केवू फूल? गुलाबनु फूल. यह है अनुभव की बात है. प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है. याद की मेहनत है. एक ही घर में एक हंस है तो दूसरा बगुला. बड़ी महीन बात बाप समझाते हैं. मेहनत करनी है, याद की मेहनत है. कई तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते हैं. अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल न आए. बाप हर प्रकार से राय देते रहते हैं. तुम जानते हो श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं. श्री माना ही श्रेष्ठ. सतयुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ. त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है. यह ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है. मेरे पास टाइम है, मैं पूरा करूँ बोलिए.
इस ईश्वरीय सभा का कायदा है, जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। आगे आगे किनको बैठना चाहिए? जिसको उबासी नहीं आती। उबासी એટલે બગાસા નથી આવતા। જ્યારે ક્લાસમાં બેઠા હોય ત્યારે બગાસા नहीं खावाना। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठ के झुटका खाते हैं, झुका मारे छे, उबासी देते रहते हैं। उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। यह ईश्वरीय सभा है बच्चों की, परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे को भी ले आती है। यूं तो बाप से धन मिलता है, एक वंशज लाखों रुपए का है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं, छीछी दुनिया है, तुम्हारे है बेहद का वैराग्य। શું કરવાનું છે આપણે? બેહદ કા વૈરાગ્ય। હદમાં રહીને બેહદનું વૈરાગ્ય, હદની વસ્તુઓને રહીને બેહદનું વૈરાગ્ય લેવાનું છે। मंदिरों आदि का नाम निशानी नहीं रहेगा। वहाँ स्वर्ग में उनको पुरानी चीज रखने की दरकार नहीं है। यहाँ तो पुरानी चीज का कितना मूल्य है। वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं मैं ना आऊं तो तुम राजाई कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं। इसीलिए कोटों में कोई कहा जाता है, कोई की भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है। भोग लगाड़िए छे, भोग लगाड़िए એટલે બાબા ખુશ થઈ જશે એવું નહીં। જ્ઞાન અને યાદ એ અલગ છે, કનેક્શન એની સાથેનું નથી એવું બાબા કહેવા માંગે છે। और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। सिर्फ दो बातें हैं, अल्फ और बे बादशाही। अल्फ એટલે अल्लाह भगवान अने बादशाही એટલે राज्य। अल्फ भगवान को कहा जाता है। उंगली से भी ऐसे इशारे करते हैं ना, आत्मा इशारा करती है ना। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम यदि मुझे याद करते हो तो तुम सब मेरे आशिक हो। यह भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ यह बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, सो आकर समझो। एक सेकेंड में विश्व का मालिक 21 जन्म लिए बना है, तो आकर समझो कि बार बोर्ड मारी दो कि बाबा यहाँ बैठ के 21 जन्म की राजाई देते हैं, तो आकर समझो। घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से 21 जन्म लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। એટલે તમે અત્યારે પૃથ્વી પર હોસ્પિટલ ને યુનિવર્સિટી ખોલશો તો તમને 21 જન્મની રાજાશાહીમાં શું મળશે? નિરોગી શરીર અને પઢાઈ। स्वर्ग की बादशाही मिलती है। प्रजा भी कहेगी कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। सतयुग में प्रजा पण हसे ते शू कहशे कि हम मालिक है स्वर्ग के। आज मनुष्य को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी है। खुद कहते हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ, तो नरकवासी हो ना, जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते हैं यह बहुत महादानी था, यह स्वर्ग गया, परंतु जानता कोई भी नहीं है। नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं।
यह लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे फिर लौटेंगे। ये लड़ाई में सब एक्टर्स नीचे आ जाएंगे परम धाम से, फिर तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे फिर लौटेंगे। એટલે બધી આત્માઓ એક વખત નીચે આવી જશે પછી જશે। शिव की बारात कहते हैं ना, શિવની બારાતમાં બધા જ જોડાશે। આવું શિવ પુરાણમાં લખેલું છે। એ બારાત કઈ કે જે વિનાશ થશે ને બાબા આપણને પાછા લઈ જશે, એ બારાત। शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएगी। मूल बात, अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस जूती को छोड़ना है। जैसे सर पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, तुम नई खाल सतयुग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है। उसमें कितनी कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है, ऐसे हम लेंगे। कहते हैं ना, हम तो नारायण बनेंगे। यह तो सड़ी हुई छीछी खल है। खल એટલે शरीर। यह हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। यह याद करते खुशी क्यों नहीं होती? जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, इस सत्यनारायण की कथा को अच्छी रीत समझो। जो कहते हो वह करके दिखाओ। कहनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो, यह है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और याद प्यार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रहो हंसते, बनो फरिश्ते। फरिश्ते बनना है तो सदा हंसते रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीज़ों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। कहनी और करनी एक समान बनानी है। दूसरी धारणा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का ध्यान कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है। इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। અભિમાનમાં થી બચવા માટે બાબા કહે છે કે નામરૂપ એટલે શું? અભિમાન, તમારું નામ, ઓહદ્દો તમારો, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, बाबा આપણને वरदान रोज एक वरदान આપે છે। साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। बाबाए આપણને આજે શું વરદાન આપ્યું? સાથી। કોનો સાથી? બાબાના સાથી। ભગવાન આપણને શું આપે છે વરદાન? કે સાથી અને સાક્ષીપન કે અનુભવ દ્વારા સદા સફળતા મૂર્ત ભવ। એનો वरदान विस्तार है। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वह साक्षी स्वतः बन जाते हैं। આપણે જેમની સાથે રહીએ એના ગુણો આપણામાં આવે તો આપણે સાથી બાબાને બનાવે। બાબા શું કરે છે? સાક્ષી બનીને જુએ છે। આપણને વિવેક આપ્યું છે અને ફ્રીડમ આપી છે। એવી રીતના બાબા સાક્ષી બનીને તમે જે કર્મ કરો છો તે જુએ છે। તો સેમ મેનર આપણે પણ સાક્ષી બનીને
અત્યારે જે ડ્રામા ચાલી રહ્યો છે, આપણી સાથે રહેતી જેટલી બી આત્માઓ જે કરી રહી છે એને સાક્ષી થઈને એનો ડ્રામા જોવાનો છે. जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वह साक्षी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे. और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है वो सफलता मूर्त स्वतः ही बन जाते हैं. भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो. ભક્તિ માર્ગમાં આપણે ભગવાનને શું કહે છે, મને એક ઝલક બતાવી દે બાબા, ભીખ માંગીએ છીએ આપણે વસ્તુ, झलक दिखा दो. लेकिन बाप सर्व संबंधों से साथी हो गए, तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया. ભક્તિ માર્ગમાં આપણને એને એક ઝલક જોવા માટે આપણે ભીખ માંગતા હોય છે. અત્યારે બાબા આપણો સાથી બની ગયો છે, તો એના નશામાં રહેવાનું કે બાપ મારી સાથી છે, એના નશામાં રહો. जो पाना था वो पा लिया. स्लोगन: व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब. હવે જ્યારે બી ઉદાસ ચિત્ત થઈ જાઓ, એવું લાગે કે ખુશી નથી, તો સમજી જવાનું કે આપણા સંકલ્પો કેવા ચાલી રહ્યા છે, વ્યર્થ, નકામા. તો એ જ સમયે આપણી સ્વિચ ઓન થઈ જવી જોઈએ. જ્ઞાન આપણી પાસે જે આપેલું છે એની સ્વિચ ઓન કરો, સંકલ્પ સારા નાખવા માંડો. મન 10 મિનિટમાં પ્રફુલ્લિત થઈ જશે પાછું. બાબાનું જ્ઞાન ઉતારવા માંડવાનું, એ ટાઈમે યાદ આવી જોઈએ, સ્વિચ ઓન થઈ જવી જોઈએ. ચેનલ ચેન્જ કરી નાખવાની. ગુજરાત દાદીએ શું કીધું? ચેનલ ચેન્જ કરી નાખો. ઓમ શાંતિ. આ હતી આજની સાકાર મુરલી. तो मेरी है अपने पास टाइम. तो आज आप फरिश्ता रूपनी मेडिटेशन करीशू. फरिश्ता रूप कोने कहेवाय अने केवी रीतना मेडिटेशन थाय. क्यों नहीं रहा? स्वमान, मैं फरिश्ता हूँ. चिंतन: सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप की तरह मेरा भी प्रकाशमय संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप विद्यमान है. वह फरिश्ता स्वरूप मेरा आह्वान कर रहा है. मुझे अपने उस संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करना है. वास्तव में मेरी यह फरिश्ता स्वरूप स्थिति ही बाबा की प्रत्यक्षता का आधार है. अभ्यास: मैं आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप को प्रकट कर रही हूँ. इस भौतिक देह से न्यारा होकर मैं फरिश्ता बाबा की ओर उड़ रहा हूँ. बाबा मुझे बुला रहे हैं. आओ मीठे बच्चे आओ. मैं फरिश्ता बाबा के अति समीप जाकर उनसे शांति, प्रेम, खुशी और शक्ति की किरणें प्राप्त कर रहा हूँ. अब रिफ्रेश और रिचार्ज होकर मैं फरिश्ता वापस साकार देह में समा जाता हूँ और मैं आत्मा चारों ओर शांति, पवित्रता,
प्रेम आनंद के प्रकंपन फैला रही हूँ। प्रयोग। यह अभ्यास दृढ़तापूर्वक दिन में कई बार करना चाहिए। इससे हमें एक सेकंड में इस स्थिति का स्पष्ट अनुभव करने में सफलता मिलेगी। अंतिम समय में हम ब्राह्मणों के लिए यही स्थिति सेफ्टी का साधन बनेगी। નાની ડ્રીલ હતી કે જે આપણે દિવસમાં મેં તમને કીધું એમ 4-5 વાર કરવાની 2 સેકન્ડ્સ 1 સેકન્ડ આપણે આપણી જાતને ફરિશ્તા સ્વરૂપે જોવાની કોશિશ કરવી. ફરિશ્તા સ્વરૂપ એટલે શું? તો ફરિશ્તા સ્વરૂપ એટલે આપણું પ્રકાશનું સ્વરૂપ, પ્રકાશિત સ્વરૂપ એ આપણે વિઝ્યુઅલાઇઝ કરવાનું છે. અને એ સ્વરૂપ આપણે અહીંથી લઈને જવાનું છે અવ્યક્ત સૂક્ષ્મ વતન, કે જ્યાં આગળ બાપ દાદા આપણને આહ્વાન કરીને બોલાવે છે. અને સૂક્ષ્મ વતન કેવું દેખાય છે એ આપણે જોયું હતું, યાદ છે? પ્રકાશ સ્વરૂપ છે, વાદળો દેખાય છે, પ્રકાશિત છે, 1000 સૂર્યનો પ્રકાશ છે એવું વાદળવાળું. અને ત્યાં આગળ જે બી બાબા દેખાય છે આપણને, બ્રહ્મા બાબા, એ બી પ્રકાશિત સ્વરૂપમાં છે. આ ફરિશ્તા સ્વરૂપે ત્યાં જવાનું છે આપણે. તો આની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. આ ડ્રીલ છે જે તમને વિનાશ વખતે કે છે કે ફરિશ્તા સ્વરૂપમાં બેસીશું તો જે તકલીફો આવશે આપણને એ તમે મહેસૂસ નહીં કરી શકો. શરીર સાથે ચાલતી વસ્તુઓને તમે મહેસૂસ નહીં કરી શકો. એની ડ્રીલ છે. વિઝ્યુઅલાઇઝેશન વધારશે તમારું. નાના છોકરાઓને કરાવતી વખતે એવું કહેવામાં છે કે તમારી ક્રિએટિવિટી સુધારી કાઢશે, તમારું મન કેન્દ્રિત થશે. કોઈ પણ વસ્તુઓ તમે સ્વરૂપને જોશો એ તમે એ વિઝ્યુઅલાઇઝેશન પાવર તમારો વધશે, ક્રિએટિવ થશે, મન એકાગ્ર થશે તમારું. ઓમ શાંતિ. આજે આપણે આખો કોર્સ પૂરો, બીકેનું લેબલ આપણે ત્યાં આગળ લાગી ગયું, બ્રહ્મકુમારીસનું, રાઈટ? એટલે હવે આપણે કોઈને પણ કહેવાનું હોય તો શું કહેવાનું? કે હું કોણ છું? હું આત્મા બ્રહ્મકુમાર બ્રહ્મકુમારી છું, બ્રાહ્મણ છું. રૂહાની સેના કા સેનાપતિ, સૈનિક સેનાપતિ બનતા વાર લાગશે. ઓમ શાંતિ.